We used to go to the sets, we used to go to the film studios. हीरो और उनकी हीरोइन ओपनली लगे पड़े हैं। मेकअप रूम बंद है घंटों के लिए। खपाखप धपाधप जो भी है वो चल रहा था अंदर। हम लोग बैठे होते थे। जिस न्यूज़पेपर के लिए मैं काम करती थी, इनके वहाँ पे मंथली पैकेट्स जाते थे। चाहे रिव्यू हो ना हो, 2.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक स्टार 10 साल पहले 1.5 लाख का बिकता था। आप बॉलीवुड में देखो, ये लोग अपने बेटों को लॉन्च करेंगे। ये लोग अपनी बेटियों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, भेज देते हैं, यार मेरी बेटी के लिए एक मूवी बना दे, इसको साइन कर ले। भेज देते हैं दलालों की तरह। आई थिंक द ओनली पर्सन जिसके साथ ये नहीं होता है सुहाना खान, क्योंकि आई थिंक ना गौरी बर्दाश्त करेगी ये, ना शाहरुख खान। वो तो सीधा कान के नीचे लगा देगा एक शाहरुख। और सारा के पास, इब्राहिम के पास तो उनकी ना पेरेंट्स की सपोर्ट है ना कुछ। They don't even have insane money also. So she called me and she said, Simi, how could you do this to me? How could you write about my husband's affair with this girl? रंग रलियां वो मना रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, को एक्टर के साथ, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपकी लॉयल्टीज मेरे साथ नहीं है। तो अजय एंड काजोल are having their first baby. So what is wrong with that story? It's a happy story. He said, Simi, she's had a miscarriage. I did a story on one male star who was having an affair with his Marathi actress, who was a Bollywood actress. सिमी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आने के लिए। जब भी आप कैमरे पे आती है ना, बॉलीवुड लवर को ना खुशियाँ मिलती कि आज कुछ नया मिलेगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं ना, वो डर जाते हैं, पता नहीं किसकी पोल खुलने वाली है। तो मुझे नहीं पता किसकी पोल खुलेगी क्या। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही है कि कभी आपकी किसी स्टोरी से किसी की फैमिली में तूफान आया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ हर्ष कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के जो स्पाउसेस हैं, बॉलीवुड के जो किड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ये बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं। बिकॉज ये बिना स्ट्रगल के, बिना तूफानों के, बिना लड़ने के ये लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं। Okay. So they don't react easily. They're very strong people. Hmm. They have a lot of tolerance in them. Okay. I've never seen any bitterness in Bollywood. Never. Never. I respect them a lot. Hmm. And they're very strong people. They don't lose their cool easily. Right. लोगों को लगता है कि सब साइकोज हैं। I mean, हम लोग सब जो भी आर्टिस्टिक लोग हैं, Hmm. whether we may be from media and we are creative people, or whether it's Bollywood and they are also celebrities and they are big stars, हम लोग सब थोड़े से eccentric हैं. But no, I don't think they're violent people. Right. I don't think they are psychos. हम लोग सब थोड़े से खिसके हुए हैं। इस पूरे लंबे जर्नी में आपके कभी कोई ऐसी स्टोरी रही जिसको करने के बाद तो आपको रिग्रेट हुआ कि इसको मैं रोक सकती थी या ये नहीं करना चाहिए था? हाँ, सिर्फ एक बार हुआ। हम लोग ने that time I used to head Bombay Times, all the entertainment, and of course पेशी तो मैंने ही शुरू किया था under the mentorship and guidance of my guru Mr. Pradeep Goa, Right. who was the publisher at that time, and he used to have full faith in me. तो हमने front page की story चला दी, काजोल is pregnant Okay. with her first child, and he called me like at 6 in the morning, and he said, Simi, you've carried this story, बहुत गड़बड़ हो गई है। Hmm. So I said, Mr. Goa, मैंने कोई extra marital affair के बारे कुछ नहीं कहा. It's just such a happy story. She's pregnant with her first child. So Ajay and Kajol are having their first baby. So what is wrong with that story? It's a happy story. He said, Simi, she's had a miscarriage. So I felt really bad. And at that time, I was not a mother yet. But I still felt really bad and I was a little shocked. And I said, Oh, Mr. Goa, I'm so sorry, but now what should we do? I thought it was a good story, they're on the family way. So should I carry a rejoinder and say, we are sorry, He said, no, just let it be.
but be very, very sensitive to Kajol. She's going through a lot of trauma. And I was not a mother yet. Right. So I felt really bad. And Kajol and Ajay Devgan were very supportive. They didn't call me, they did not complain. And Kajol was very close because she's also Bengali, Right. half Bengali. And Mr. Goa, my boss, the publisher of Bombay Times, was also a Bengali. They had a very close bond. But she didn't complain or anything, she was just heartbroken. She had just lost the I baby. understand, ma'am. बड़ा So I गंदा सा टाइमिंग था। ये स्टोरी आई और और उसी दिन उनका एक दिन miscarriage. पहले मिसकैरेज हुआ था। और यहाँ पे मैंने फ्रंट पेज पे स्टोरी चला दी, काजोल इज प्रेग्नेंट विद हर फर्स्ट बेबी। Right. तो बहुत बुरा लगा। बट काजोल ने और अजय देवगन ने कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ मेरे बॉस से शेयर किया कि देखो कितनी आयरॉनिक ट्रेजेडी है। Right. तो हाँ, वहाँ पे मुझे बुरा लगा। Hmm. और ज़्यादातर क्या होता है ना, व्हेन यू राइट अबाउट मैरिड हीरोज हैविंग अफेयर्स विद देयर Correct. यंगर एक्ट्रेसेस, Hmm. तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो नाउ आई एम इन दिस बिजनेस फॉर एटलीस्ट 30 years Hmm. एंड जैसे मैंने आपको कहा, मेरा एक प्रिंसिपल है, अगर दम नहीं आना तो बेनामी स्टोरीज मत करो। Right. ये गेस हु ब्लाइंड आइटम्स मत करो, इफ देन यू आर अ कंप्लीट फट्टू। Correct. तो I did a story on one male star who was having an affair with his Marathi actress who was a Bollywood actress. Okay. तो मैंने स्टोरी कर दी। अब ये हीरो की वाइफ प्रेग्नेंट थी। Hmm. तो she called me and I was very young at that time. I must have been 18 maybe. I was just starting out. So she called me and she said, Simi, how could you do this to me? How could you write about my husband's affair with this girl? So you're my friend. Don't you have any loyalties towards me? तो 10-15 मिनट तो पहले मैं सुनती रही। Finally, I'm like, you know what? I was also young, very brash, and I've always been outspoken. Okay. So I said, listen, why are you asking me all these questions? You're asking me about my loyalties to you. Did I take the wedding vows with you? फेरे मैंने तो आपके साथ नहीं लिए ना, Right. आपके हस्बैंड ने लिए आपके साथ फेरे। Hmm. आप मेरी लॉयल्टी आपके साथ क्वेश्चन कर रही हो, ये आप अपने हस्बैंड से जाके पूछो ना यार। Correct. उन्होंने फेरे लिए हैं, आप उनकी लॉयल्टी को क्यों नहीं क्वेश्चन कर रही हो? आप अपने हस्बैंड से इतना डर रही हो। फेरे उसने लिए हैं, लॉयल्टी उसकी आपके साथ होनी चाहिए। रंग रलियां वो मना रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, को एक्टर के Correct. साथ, को एक्ट्रेस के साथ, और आप मुझसे पूछ रही हो कि आपकी लॉयल्टीज मेरे साथ नहीं है। वहां तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही, वहां पे आपका मुंह नहीं खुल रहा, आप मुझे डांट रही हो। Hmm. शी वॉज स्पीचलेस। फोन बंद हो गई। टिल टुडे वी आर गुड फ्रेंड्स, Hmm. हस्बैंड वाइफ, एंड दैट एक्ट्रेस हु इज आल्सो मैरिड टू समबडी एल्स इन बॉलीवुड। Right. तो ये होता था। Hmm. बट मैं क्यों ना नाम लूं। और वो he is having an affair. That actress is also openly having affairs and getting recommended for movies through him, so she's using him. Correct. और वाइफ भी चुपचाप बैठी हुई है हस्बैंड के साथ। तुम मुझे क्यों डांट रहे हो भाई? मैंने तो ना अफेयर किया है, ना ना मैंने कुछ- अफेयर करवाया Right. है। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट किया। मैंने तो सिर्फ वो लिखा है, जो ओपनली कर रहा है वो छुपा भी नहीं रहा है। तो तुम मुझे आके क्यों डांट रही हो? बट मैम होती थी स्टोरीज जब आप करते थे इस तरह की स्टोरीज, तो जो आज जो हम देखते हैं पीआर गेम जो बहुत हावी हो गया है, उस तरह की स्टोरीज नहीं कर पाते थे उस समय। आप लोगों पर भी प्रेशर आता है, ये स्टोरी डाउन करो, ये हाँ हाँ हाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल प्रेशर आता था। हाँ। और व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द सेट्स, वी यूज्ड टू गो टू द फिल्म स्टूडियोज, हीरो और उनकी हीरोइन ओपनली लगे पड़े हैं। हम लोग सेट पे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, मेकअप रूम बंद है घंटों के लिए। ओके। अंदर क्या टकाटक घपा घप, क्या था वो वर्ड संजू का, संजय दत्त का वो संजू का- संजू मूवी में जो यस राइट घपा घप धपा धप जो भी था। राइट मेरा बेटा आज तक मुझे छेड़ता है, मॉम यू जस्ट डोंट गेट दैट डायलॉग राइट टू यू। घपा घप धपा धप जो भी है वो चल रहा था अंदर। हम लोग बैठे होते थे, हीरोइन निकलती थी थोड़ी देर के बाद, बाल बाल हिले हुए, हेयर ड्रेसर को बुलाया, बाल ठीक किए, लिपस्टिक फिर से टचअप की। हम लोग खुद अपनी आंखों से देखते थे। समझे वाली बात थी कि ये सब मत लिखना। समझ वाली बात थी। हाँ, Right. समझे वाली बात मत Yes. लिखना। हम अपनी आंखों से देखते थे, बट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी। Correct. वी डिडंट वांट टू स्पॉइल आवर रिलेशनशिप। लेकिन क्या होता था ना, तभी एक मैगजीन के जर्नलिस्ट ने देख लिया हम्म, तो वो तो पकड़ा जाएगा, तो वो नहीं लिखेगा। वो दूसरे जर्नलिस्ट को दे देता था फ्रॉम अनदर मैगजीन, कि तू लिख। तो वो लिख लेता था। ओके। नेक्स्ट टाइम जब वो कुछ देखता था हाँ तो वो हमको लीक कर लेता था।
तो हम लिख देते थे, ओके। तो इट वाज गिव एंड टेक। तो स्टोरी तो बाहर निकलनी ही है, छुप नहीं सकती लेकिन है। हाँ, लेकिन हम नहीं पकड़े जाते थे क्योंकि हमने दूसरे मैगजीन को लीक कर दी और दूसरे मैगजीन ने हमको लीक कर दी। तो जिसने देखा वो बच गया और जिसने लिखा वो तो बेचारा वहाँ था ही नहीं। राइट। एंड एक्चुअली द स्टार्स इज नॉट बॉर्डर, निकल गई तो निकल गई यार, है अफेयर है, क्या करेगी स्टार वाइफ, कुछ नहीं करेगी, कहाँ जाएगी वो। तो मजबूरी हो जाती है। और क्या है, 1.5-2 साल के लिए जब तक वो 3-4 फिल्म्स कर रहे हैं हीरोज हीरोइन के साथ, तब तक वो चक्कर चलेगा, फिर दूसरा अफेयर हो जाएगा। यू नो, वी बोथ नीडेड ईच अदर। अब क्या हो गया, अब तो दबाने, स्टोरीज दबाने की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि अब जो मीडिया वाले हैं उनमें भी सिंसियरिटी नहीं है। क्योंकि मैं कहती हूँ आज 90% जो मीडिया है वो मीडिया है ही नहीं है। कोई गोंडा में बैठा है यूपी में, तो कोई रांची में बैठा है, कोई छत्तीसगढ़ में दूसरे कस्बे में बैठा है, Correct. छोटे से ट्री टॉप में बैठ के, वो झामतारा के जैसे Right. कोई विलेज में बैठ के वहां से वो फिल्म न्यूज दे रहा है। तो ये लोगों ने तो कभी आज तक फिल्म सेट ही नहीं देखा है, किसी स्टार को पर्सनली मिले तक नहीं है, शायद आज तक बॉम्बे की ट्रेन की टिकट भी नहीं कटवाई है, और ये बैठ के और ये बॉलीवुड जर्नलिस्ट बने हुए हैं आज। तो ये लोग तो खुद मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं। मैंने कल ही देखा, मेरी एक इन्होंने वीडियो की फुटेज ले ली मेरी, ना मेरी आवाज़ है ना कुछ, और उधर लिखा हुआ है कि मैंने कहा है कि नीतू कपूर गे हैं और वो लेस्बियन है और ऋषि कपूर भी गे हैं, ओके। और मेरा थोबड़ा वहाँ डाल दिया और मेरी आवाज़ म्यूट कर दी, और वो कुछ ज़बरदस्त गौठी हिंदी में बोली जा रही है। अब मैं उनको जाके फ्लैग करूं तो कहाँ करूं, वो यूट्यूब की शॉर्ट्स हैं। ओके। वेयर डू आई कंप्लेन अबाउट दिस चैनल? और आपने कभी ऐसा बोला नहीं है? नहीं। अब आई वॉज वेरी अपसेट, बट मैं क्या करूं, पता ही नहीं है कि चैनल कहाँ से आ रहा है। राइट। उनका आईपी एड्रेस ढूंढने जाऊं तो कहाँ जाऊं, यूट्यूब को कंप्लेन करने गई, वो बोलते हैं गिव अस द नेम ऑफ द चैनल। इट्स नॉट अ चैनल, उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला हुआ है, राइट। कुछ भी डाल देते हैं। फेस मेरा है, राइट। साउंड म्यूट कर दिया, मेरा मुंह दब रहा है, हिल रहा है मेरा माउथ, और पीछे व्यू उनका चल रहा है। तो आज आपको ऑर्गेनिक न्यूज 95% जो आज सेल्फ प्रोक्लेम्ड मीडिया एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, वो जर्नलिस्ट है ही नहीं है। इनफैक्ट आज जो इतने सीनियर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बने हुए हैं, यूट्यूबर्स, उन्होंने 25 साल के अपने करियर में कितने स्टार्स को देखा हुआ है। राइट। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने शायद एक टीवी एक्टर के साथ इंटरव्यू की होगी, ओके। राजेश खन्ना को मिले होंगे शायद एक बार, धर्मेंद्र को मिले होंगे, और वो अपने आप को बॉलीवुड एक्सपर्ट कहते हैं। उन्होंने मूवीज देखी होंगी और वो अपने आप को फिल्म क्रिटिक कहते हैं। आपने क्या किया है, हाउ आर यू अ फिल्म क्रिटिक? राइट। आपने कोई कोर्स किया है जर्नलिज्म का, ब्रॉडकास्टिंग का? आप कितने डायरेक्टर्स को पर्सनली जानते हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है? आप कितने साल से फिल्म रिव्यूज कर रहे हैं? आपने कितनी मूवीज देखी हैं? राइट। आपने कितने साल से खालिद मोहम्मद की रिव्यूज पढ़ी हैं? राइट। आपको क्या पता है मूवीज के बारे में? आप खाली पिक्चर की टिकट खरीदते हैं, खरीदते हैं। पीवीआर में बैठते हैं और घर आते हैं और 4 लोग की रिव्यूज देखते हैं और उसका एक कॉकटेल बना के अपना रिव्यू छाप देते हैं। एक शान प्राशर हु इज वेरी गुड एट दिस क्राफ्ट, एंड एक राइट। बाकी सब कौन है रिव्यूज देते हैं? ये लोग कौन है? ये लोग जाते हैं मूवी थिएटर्स में, इनको एनवलप में पैसे दिए जाते हैं फ्रॉम 3,000 रुपीज टू 20,000 रुपीज। ये बात छोड़ दो, जिस न्यूज़पेपर के लिए मैं काम करती थी, अच्छा हुआ मैं निकल गई, उस टाइम पे अमेरिका चली गई, इनके वहां पे के मंथली पैकेट्स जाते थे, चाहे रिव्यू हो ना हो। एयरमेस के बैग्स जाते थे, शनेल के बैग्स जाते थे। ये रिव्यूज हैं। मैं ओपन चैलेंज बोलती हूँ, कोई डिनाई कर दे, कितने सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स हैं
ये जो हमको स्टार्स दिखाते हैं ना वो लोग प्रोड्यूसर्स की, हम्म। देखो ये फिल्म हिट हो गई है, राइट 2.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। राइट एक एक स्टार 10 साल पहले 1.5 लाख का बिकता था। ओके। यहाँ पे रिव्यू बिजनेस है ही नहीं। तो मतलब ये जो 5 स्टार्स में से 3.5 3 4 जो देते हैं 1.5 लाख का एक स्टार बिकता था, अब 2.5 लाख का हो गया होगा। ये तो हुई रिव्यूज की बात। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब जो पीआर है इनके, ये कितना कंट्रोल हम्म। करते हैं। आज हर्ष, मैं ये ओपनली कहती हूँ डंके की चोट से, आज जो भी न्यूज आप देखते हैं, हम्म whether it's on YouTube, whether it's on news channels, whether it's on, except for a few credible news channels, not entertainment राइट channels. राइट Entertainment channels आज रही कहाँ है? कर रही अब तो है ही नहीं खत्म। यस आप तो YouTube ही है, फिर डिजिटल हैं चैनल्स जो न्यूज़पेपर्स के हैं, उनके डिजिटल प्रेजेंस है। वहाँ पे जो भी न्यूज़ मिलती है वो आज बिटवीन द स्टार्स एंड दे पीआर एजेंसीज मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। आज आपको ऑर्गेनिक न्यूज़ नहीं मिलती। एक फैक्ट्री है, सोचो बॉलीवुड की, जहाँ पे न्यूज़ प्रोड्यूस की जाती है, मैन्युफैक्चर्ड की जाती है, और यही और वो अच्छे अच्छे पोर्टल्स को और यूट्यूब चैनल्स को दी जाती है, जो आगे आपको दी जाती है, करेक्ट जो प्रोड्यूस करके वो सिर्फ छापते हैं। इसलिए अगर आप जाके देखो इंस्टाग्राम पर, आप जाके देखो यूट्यूब पर, और मीडिया हाउसेस के डिजिटल साइट्स पर, वर्ड्स भी सेम होते हैं, कॉमा भी सेम जगह होता है, ये लोग उतना भी चेंज नहीं करते हैं। आज सच्ची न्यूज़ कोई नहीं देता। करेक्ट मे बी मेरे को लेकर और 2-3 लोग होंगे शायद जो आपको आज भी ओरिजिनल न्यूज़ देते हैं। सही बात है इट्स ऑल मैन्युफैक्चर। राइट तो आज अगर कोई बोल रहा है इसका उसके साथ अफेयर है, ये है वो है, इट्स ऑल बेसलेस है ऑल प्लान्ड। प्लान्ड प्लान्ड। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल दे अपनी तरफ से जो उसको मिला हो, क्योंकि पहली बात ये जो आज यूट्यूबर्स बने हुए हैं इनके सोर्सेस कहाँ हैं? हाँ करेक्ट है कि अब ये लोग सब नए लुक्खे हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट खुद बना के बैठे हुए हैं, एंड ब्लैकमेलर्स हैं। ही ब्लैक ये मतलब स्टोरीज ये सब पीआरओ से पैसे लेते हैं, ये लोग सब पेड कंटेंट डालते हैं। और इसीलिए मैम वो चीज़ रही नहीं ना जो हम पहले एक डेकेड पहले देखते थे 2004 5 6 में जब आप लोग आते थे जूम पे आते थे और जो स्टोरीज आती थी हमें लगता था हाँ अच्छा ये चल रहा है, हमें इंडस्ट्री से रिफ्रेश स्टोरीज मिलती थी, पता चलता था अच्छा ये हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें अवेलेबल है और अगर जो न्यूज़ आ भी रही तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इनसाइड्स नहीं है, लग रहा है हाँ ठीक है पीआर टाइप न्यूज़ है, वैसी न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है जो मेरी तो अब भी नहीं खत्म हुई। मैंने तो अभी भी रिसेंटली कहा कि दिशा और पटानी और मौनी रॉय मौनी रॉय, तो अब ये वो एक साइको सिंगर है ना तलविंदर, हाँ तो मैंने तो अभी भी कहा कि फाइनली दिशा पटनी इज नॉट बीइंग लिंक्ड विद मौनी रॉय बट एक्चुअली अ गाय। तो मैं तो अब भी, जब तक मेरी न्यूज़ ओरिजिनल ना हो, मैं तो wannabe न्यूज़ डालती नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राइट I will any day follow everything that Ori is doing, and I rather put that. I love to follow Gen Z news. I would rather write about a Tara Sutaria and a Veer Paharia or a Janvi. I'm very fascinated by Ori because वो कितना original है। वो जब भी कोई न्यूज़ लेता है, whenever he's out in public, whenever he's out at an event, राइट मुझे बहुत मजा आता है ऑरी को फॉलो करने में यार। He's so original. करेक्ट और लाइक बेचारा इतना क्यूट है, वो जहाँ जाता है ना उसको किसी ना किसी पंगे में पड़ जाता है। अब बेचारा उसने कुछ भी नहीं किया, उसको धक्के मार मूर के ऐसे उसको नारकोटिक्स वाले लेके जा रहे हैं। पूछो नारकोटिक्स वालों से, ही वॉज नॉट एन अक्यूज्ड, उसको सिर्फ क्वेश्चन करना था बिकॉज सम इडियट ड्रग डीलर एंड ड्रग मैन्युफैक्चरर हैड नेम्ड हिम, ही इज नॉट एन अक्यूज्ड। वो जो ड्रग की फैक्ट्री चला रहा था उसको आपने वो काला कपड़ा 2 आंखें के होल से उसको लेके चले गए, और औरी की आप शक्ल दिखा रहे हो। 4 दिन पहले आपने उसका नाम दे दिया, क्यों? नौरा फतेही का नाम दे दिया आपने, क्यों? श्रद्धा कपूर का आपने नाम दे दिया, क्यों? दे आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने औरी का नाम दे दिया, बेचारा छोटा सा बच्चा है, वो धक्के धुक्के मार के बोल रहा मुझे धक्का मत मारो, मुझे धक्का मत मारो।
क्यों ऐसे कर रहे हो आप? उस बेचारे की ना बैड लक ही बैड है। बैड लक। अब रिसेंटली वो गोवा का केस हुआ जहाँ फायर लग गई, यस। 25 लोग मर गए। मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ वो लूथरा ब्रदर्स, वो थाईलैंड में छुपे हुए थे। लूथरा ब्रदर्स के ना। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखा उनके साथ कौन डांस कर रहा है, बेचारा औरी। और आई वॉज वेरी टेम्पटेड टू यूज दैट एज अ स्टोरी कि बेचारे ना औरी का तो राहु केतु खराब है, जहाँ मुसीबत वहाँ औरी बेचारा फंस जाता और है। जबकि उनके साथ ऐसा क्यों, जिसको टच करते हो लक हो जाता है, ऐसा एक है। और तो आई वॉज वेरी टेम्पटेड टू पुट दैट स्टोरी। फिर Yes. मैंने कहा बेचारा बच्चा बिना मतलब का ना वायरल हो जाएगा एंड Hmm. पीपल विल स्टार्ट जजिंग हिम, सो आई डिडंट कैरी दैट स्टोरी। ओके। और जहाँ तक अब ये टच की बात कर रहे हो ना, मैं तो अब जहाँ जाती हूँ मैं अपनी फोटोज देख रही हूँ, मैं भी ऐसे सबके यहाँ हाथ लगा के बैठी हुई हूँ। मैंने कहा ये तो मेरे को औरी की बीमारी लग गई है। तो यू नो पीपल लाइक औरी, these kind of people, I like to follow them. They still generate original content. राइट। Even Janvi, you know, even if she's planned it, कुछ नया content तो देती है। My Shiku, my this, my that. They give you original content यार। अब ये सब बुढ़ाओं को क्या देखना? करेक्ट है। मैम, जैसे आपने कब पार्टीज़ की बात की, इनके जो न्यू कंटेंट की बात की, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप उस समय से पार्टीज़ कवर करती है जब लोग सिर्फ सुनते थे, आप वहाँ जाती थी, वहाँ से न्यूज़ होती थी, आप भी जाती हो? अभी भी जाते हो आप, तो मैं बता वो दौर की पार्टी और आज के टाइम की पार्टीज़ में क्या चेंजेस आ चुके हैं, अगर आप बता पाए तो? एक्चुअली कोई चेंजेस नहीं। कोई चेंजेस नहीं है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पहले जब हम बाहर निकलते थे तो वहाँ पे हम अंधे नहीं हो जाते थे, क्योंकि 100 फ्लैश बल्ब्स नहीं होते थे वहाँ पे, कैमरास नहीं होते थे इतने सारे। तो हम लोग निकलते थे हल्के से लुढ़के हुए, गाड़ी में बैठे और घर आ गए। करेक्ट। और अब क्या है, बाहर कैमरास होते हैं। बट हर्ष, मैं अभी भी यही कहूंगी कि अगर बॉलीवुड चाहे ना, इवन टुडे दे कैन गेट देयर प्राइवेसी। ओके। देखो, आपने संजय दत्त को कभी पार्टीज करते हुए देखा है? तो कितने साल पहले का वो वीडियो आपने देखा होगा जहाँ वो प्यार से एक पापराजी वाले को गाली निकाल रहे हैं कि चल ना, जाना यार। इफ दे वांट दे कैन टेक द बैक एंट्रेंस, राइट। इफ दे वांट टू दे कैन गेट दैट प्राइवेसी। स्टिल दे डोंट वांट दैट प्राइवेसी। वो भी बेस है। तो नथिंग हैज चेंज्ड। इवन टुडे इफ दे वांट, करण जोहर के घर पे पार्टी होती है, आपको वीडियो मिलता है। राइट। जब तक वो जाके सोने से पहले पोस्ट कर देते हैं आफ्टर 1 or 2 ग्लासेस ऑफ वाइन और तकीला सोडा, यू नॉट गोना गेट फुटेज। ये लोग डालते हैं तो मिलता है ना। पापराजी आपको अंदर का कुछ दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो जो आपको दिखता है ना, वो वहाँ पे जो वानाबी प्रोड्यूसर्स होते हैं, वानाबी डायरेक्टर्स होते हैं, या छोटे मोटे जो एक्टर्स होते हैं जिनको दिखाना है कि आई हैव एक्सेस टू ऑल दिस, वो जाके डाल देते हैं ना वीडियोस। Paparazzi standing outside. What do you get from inside? मैम, अभी लास्ट टू लास्ट दिवाली, मतलब ये जो गई अभी नहीं, 2024 की दिवाली, ओके। आयुष्मान के घर पे थी। उसने कार्तिक आर्यन के साथ अपना वीडियो डाला जहाँ पे वो पैसे की थद्दी लेके छेड़ रहे हैं दूसरों को। एंड व्हाट द इनडायरेक्ट मैसेज दे वर सेंडिंग इज कि करण जोहर, मनीष मल्होत्रा, आप अपनी पार्टी कर लो, हमें मत बुलाओ, लेकिन हम भी पार्टी करते हैं। आउटसाइडर्स वर्सेस नेपोज। अभी ये पार्टीज कौन दिखा रहा है? Who is showing that footage? Right. These people themselves. Right. Not paparazzi, not journalists. And when I go to attend some of these parties, I'm not saying I get invited to all these parties, but I go for some. But I don't go outside and post pictures. I don't need to prove a point कि you know what, Simi Chandok was there at this party. No. Correct. ये इनके ही लोग हैं। जो ये बहुत सारे wannabes हैं जो दिखाना चाहते हैं, you know what, I was with so and so. और पार्टीज में क्या दिखाएंगे फोटोज? छोटे छोटे स्टार्स के साथ। पर मैं जो करण जौहर की जो पार्टी जो वीडियो आया था, मैं जानता हूँ कि काफ़ी बातें हो चुकी हैं, बट मैं थोड़े में समझना चाहता हूँ कि वो गलती से वो इमेज हो गई और सारा पूरा जो बवाल मचा, या सीरियसली कुछ वैसा होता है उन पार्टीज में? होता है तो क्या होता है, उसमें क्या रॉन्ग है? वो अपने घर में कर रहे हैं। वो कोई ड्रग्स बेच रहे थे क्या? उनकी बॉडी, उनका पैसा, उनका घर, सब अडल्ट थे, चॉइस उनकी थी, उन्होंने क्या किया। और करण ने तो सीधे साधे ओपनली वीडियो डाल दिया। उन्होंने वो वीडियो डिलीट किया होगा शायद, आई डोंट नो। बट अगर करण जौहर ने किया भी है तो अपने घर पे कर रहे हैं, कोई ड्रग्स पेडल तो नहीं कर रहे थे ना। दे आर ऑल अडल्ट्स, ओके, एंड दे आर, इट्स देयर बॉडी दे आर अब्यूजिंग, इफ एट ऑल दे आर अब्यूजिंग। पैसे उनके हैं,
and obviously it was within the legal limits of personal consumption. तो अगर वो सब कर रहे हैं वहाँ पे, विकी कौशल थे, अर्जुन कपूर था, वरुण धवन था, मलाइका आंख मार रही थी, दीपिका आंख मार रही थी, पता नहीं कौन कहाँ आंख मार रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, सब कर रहे थे, दे ऑल अडल्ट्स। तो आज क्या बॉम्बे की पार्टीज में ये नहीं होता है, दिल्ली की पार्टीज में नहीं होता, ऑलमोस्ट सभी का हाल है सब जगह है, सब सब जगह है। ये जो टर्म्स है नेपो किड्स का, ये आपको लगता है बहुत इजी हो गया लोगों के लिए टारगेट करना कि ये स्टार किड्स है तो इनको नेपो किड्स बोल के सारी चीज़ें करें? क्या सीरियसली ये हार्ड वर्किंग होते हैं या सच में ये इनको इजीली चीज़ें मिल जाती हैं? देखो दोनों बातें हैं यहाँ पे, नेपो किड्स के लिए इजी होता है एक प्लेटफॉर्म मिलना, बट एट द सेम टाइम नेपो किड्स को जज भी बहुत किया जाता है, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, तो दोनों फैक्टर्स हैं यहाँ पे। ओके, दोनों फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैम एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे पहले हम देखते थे ना कि स्टार किड्स जब आते थे, किसी हीरो का या हीरोइन के बच्चे आते थे, तो बहुत ग्रैंड तरीके से उनके पेरेंट्स उनको लॉन्च करने की कोशिश करते, फिल्म उस लेवल पे चूज़ की जाती थी, पैसा लगाया जाता, सारी चीज़ें। बट अब देख रहे हैं धीरे धीरे कल्चर ख़त्म होता है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज या कोई दूसरा जो है उन्हें जबकि उनके पेरेंट्स उन पर उतना पैसा नहीं लगा रहे। आप क्या समझती, क्या ये ट्रेंड है, क्या चीज़ें यहाँ पर है? यहाँ पे ना हर्ष, बहुत ही एक मिसोजिनिस्टिक, बहुत ही एक सेक्सिस्ट एटीट्यूड है बॉलीवुड वालों का। हमको लगता है कि बॉलीवुड वाले बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, मुझे लगता है इनकी सोच इतनी घिसी पिटी है ना, इनको शर्म आनी चाहिए। आप बॉलीवुड में देखो, ये लोग अपने बेटों को लॉन्च करेंगे, अपने ग्रैंड सन्स को लॉन्च करेंगे, एक शाहरुख खान को छोड़ के जो अपनी बेटी सुहाना के लिए इतनी बड़ी फिल्म, इतनी ग्रैंड लॉन्च कर रहे हैं, अभी प्लान ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके अलावा ये लोग सब अपने बेटों को और ग्रैंड बेटों के लिए लॉन्च करते हैं मूवीज। मुझे एक स्टार बता दो, एक दादा बता दो, एक बाप बता दो, एक माँ बता दो जो अपनी बेटी के लिए या ग्रैंड डॉटर के लिए लॉन्च करती है मूवी, बताओ। ये लोग अपनी बेटियों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, भेज देते हैं, यार मेरी बेटी के लिए एक मूवी बना दे, इसको साइन कर ले, यार मेरी ग्रैंड डॉटर को साइन कर ले, यार उसके लिए एक पिक्चर बना दे, भेज देते हैं दलालों की तरह स्टार्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोडक्शन होम्स के पास, डायरेक्टर्स के पास, यार मेरी ग्रैंड डॉटर है, यार मेरी बेटी है, इनको लॉन्च कर दो। ये दलाल हैं, ये ब्रॉड माइंडेड लगते हैं आपको? यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है, ये लोग अपने बेटों को लॉन्च करेंगे। धर्मेंद्र ने अपने बेटों को लॉन्च किया, धर्मेंद्र ने अपने ग्रैंडसन को लॉन्च किया। जब ईशा और अहाना की बारी आई, ना हेमा ने उनको लॉन्च किया, ना धर्मेंद्र ने लॉन्च किया। हेमा जी ने शाहरुख खान को लॉन्च कर दिया दिल आशना में, करेक्ट, लेकिन ईशा को लॉन्च किया डिम्पल कपाडिया और राजेश खन्ना, इतने बड़े स्टार्स, क्या उन्होंने ट्विंकल को लॉन्च किया? वो फैजल खान के साथ मेला में लॉन्च हुई, वो बॉबी देओल के साथ थ्रू धर्मेंद्र एंड सनी देओल हु इज डिम्पल कपाडियाज बॉयफ्रेंड, वहां पे ट्विंकल खन्ना लॉन्च हुई। इतने ब्रॉड माइंडेड स्टार पेरेंट्स, इन्होंने मेला में उनको लॉन्च किया, इन्होंने बरसात में उनको लॉन्च किया अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू। लेकिन क्या राजेश खन्ना और डिम्पल ने ट्विंकल को ड्रीम लॉन्च दिया अपने पैसों से? करंट में भी यही चीजें हो रही है। आप किसी का भी नाम ले लो, एक सुहाना खान और शाहरुख खान को छोड़कर बताओ ना, इतनी नेपो डॉटर्स हैं। चलो रवीना टंडन, उनके फादर कितने बड़े फिल्म मेकर थे, करेक्ट, उन्होंने अपनी डॉटर को लॉन्च किया। ये तो सेफ हैंड है ना मैम, जिसके पास भेज रहे हो तो सेफ हैंड है ना उनके। क्या सेफ हैंड है यार? देखो एक बार मार्केट में लड़की आ गई ना, पहली बार उसको कास्टिंग काउच नहीं मिलेगा, 2-3 फिल्म्स उसको नहीं मिलेंगी, उसके बाद वो रैट रेस में आ जाती है। लड़की यहाँ पे हो या लड़का हो, एक बार वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, उनको वहाँ पे सिर्फ एक एक्टर या एक्ट्रेस बन के नहीं रहना है, उनको नंबर 1 जाना है किसी तरह भी। दे वांट टू रीच नंबर 1 पोजीशन। फिर
वो कुछ भी करे, उसके ऊपर प्रेशर ना भी हो सामने वाले का, वो खुद जाके बोलेगी आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, आई वांट टू बी नंबर 1। स्टार किड्स भी। क्यों नहीं? वो लोग क्या यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 10 बनने आए हैं? उनको नंबर 1 पे पहुंचना है, उनको रैट रेस में हिस्सा लेना है। आज आपको क्या लगता है कि जितनी भी ये नेपो डॉटर्स हैं, दे आर हैप्पी बीइंग नंबर 5, नंबर 6, नंबर 10? नहीं, ऑब्वियसली दे नॉट। ऑल वांट टू बी न्यूमरो उनो, दे ऑल वांट टू बी नंबर 1। उनको कोई फोर्स नहीं भी करेगा ना, वो सामने से जाके बोलेंगी आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, मुझे नंबर 1 बनाओ। वो खुद ऑफर करेंगी। जो आउटसाइडर्स हैं उनके पास तो कोई चारा ही नहीं है, ये तो खुद जाके ऑफर कर देती है अपने आप को। क्यों नहीं करेंगी आप बताओ? आपको मेरी बात में लॉजिक दिख रहा है या नहीं? मैं हमारे व्यूअर्स से पूछना चाहती हूँ, आपको मेरी बातों में लॉजिक लग रहा है कि नहीं? इनको तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता ही नहीं है, ये खुद ऑफर करती हैं यार। ओके। कैन यू चैलेंज व्हाट आई एम सेइंग? डज इट मेक सेंस टू यू? यस, आप बताओ। राइट। बट मैम, जैसे कि मैं ये समझ महेश भट्ट को देखो, हाँ, इन्होंने कंगना रनावत को चांस दिया, इन्होंने बिपाशा बासु को चांस दिया, मल्लिका शेरावत को चांस दिया, सबको चांस दिया। बट मैं यही चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर एक आम इंसान अगर देखता है, जब वो जानता है कि ये बड़े बाप के बच्चे हैं, ये तो इनको तो कुछ नहीं होगा, ये तो अपने टर्म्स पे चलते होंगे, इनको इजीली फिल्में मिलते हो, इन्हें क्या ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज करने की? मैंने अभी समझाया ना बिकॉज कि वो घुस तो उनको एंट्री तो मिल जाती है, उनको लॉन्च पैड मिल जाता है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? डफर तो हैं बेचारे, पढ़े लिखे तो हैं नहीं है ये लोग, हम्म, तो 1-2 फिल्म्स तो मिल जाएंगी उनको, 3-4 फिल्म्स मिल जाएंगी। करेक्ट। फिर जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं, जो टैलेंटेड हैं, या इनके खुद के सर्कल के दूसरे नेपो बेबीज हैं, जो नेपो किड्स हैं, उनकी 1-2 फिल्म्स हिट हो गई तो, उनको 1-2 अवार्ड्स मिल गए तो इनको लगेगा हम तो पीछे रह गए। और ये लोग तो बचपन से दोस्त होते हैं, फिर दोस्त से राइवल्स बन जाते हैं, फिर इनको लगता है अरे शी इज अहेड ऑफ मी, शी गॉट अ फिल्म विद अ बिग साउथ स्टार, शी गॉट अ फिल्म विद द नंबर 1 हीरो, मुझे भी चाहिए। राइट। दे विल डू एनीथिंग। तो ये कंपटीशन किस तरह के, किस लेवल तक जाता है इनका? पैसे के लेवल पे जाता है, अवार्ड्स के लेवल पे जाता है, फिर उनको फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स पे एक्सपोजर चाहिए, फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स पे जाता है। दे वांट ऑल द बिग मल्टी इंटरनेशनल ब्रांड्स, all the big prestigious fashion brands of the world like Gucci, Chanel, Armani, everything। वहाँ पे भी कंपटीशन है। सिर्फ फिल्म्स की बात कहाँ है यहाँ पे? ओके। ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं, फिल्म फेस्टिवल्स इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे इनको जाना है, हर जगह है। और हु दे आर हैविंग रोमांटिक लिंकअप्स विद, अगर इनके पास कोई चिंटू मिंटू है जिनके साथ इनका लिंकअप है, राइट। और दूसरी इनकी जो नेपो किड है, जो इनकी बचपन की सहेली है, इनके बचपन का एक फ्रेंड है, दोस्त है, उनका एक थोड़ा प्रेस्टिजियस लिंकअप हो गया है, ये बोलेंगे अरे मैं तो लुखी के साथ घूम रही हूँ, अरे मैं तो लुखी एक्ट्रेस को डेट कर रहा हूँ। नो नो नो, मेरा भी बंदा या मेरी भी गर्लफ्रेंड उतनी प्रेस्टिजियस होनी चाहिए। वहां पे भी इनके लिए इस तरह का भी competition आ जाता है। कंपटीशन है? कंप्लीट कंपटीशन है भाई, प्रेस्टीज की बात है। ओके। आप सोचो ना, यू पुट योर सेल्फ इन दैट प्लेस। राइट। अब एक ने अपने बट की सर्जरी करवा ली तो दूसरी कहेगी मुझे भी करवानी है, एक ने अपने एब्स यहाँ से कटवा लिए तो दूसरी बोलेगी मुझे भी करवाना है। और इनकी मदर्स क्या कम एम्बिशियस हैं? सोचो आप एक 16-17 साल की लड़की को उसकी माँ बोल रही है नोज जॉब करवा ले, बूब जॉब्स करवा ले। आपकी बेटी 15-16 साल की है, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे और बोलोगे सिलिकॉन इम्प्लांट्स करवा लो, नोज जॉब करवा लो। डू यू नो हाउ पेनफुल अ नोज जॉब इज? वो आपका पूरा नाक हथौड़े के साथ तोड़ते हैं, पूरी हड्डियों को, और फिर दोबारा पूरा रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। ये कैसी मदर्स हैं जो आपके 15-16 साल की अपनी बेटी को बोलते हैं नोज जॉब करवा लो, बूब जॉब्स करवा लो। ये फैक्ट है। फैक्ट है, आपको दिख नहीं रहे हैं चेंजेस? Yes. रोज इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कॉस्मेटिक जो सर्जन्स हैं वो आपको बिल्कुल। रोज रील्स बना के देखते हैं, देखो इसका नाक देखो पहले का अभी का, इसके ब्रेस्ट देखो पहले के अभी के। अभी तो रिब्स ही काट दिया, अभी तो इतनी इतनी कमर हो गई है जिसको हम हैंड स्पैन वेस्ट कहते Right. हैं। इनकी मदर्स को भी तरस नहीं आता है, कितनी एम्बिशियस मदर्स हैं, कितनी रूथलेस मदर्स हैं, और इनके बाप भी देख रहे हैं। और जब पापराजी, अभी तो बर्ड्स और ब्रेस्ट के नाम के इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स खुल गए हैं, Right. बॉलीवुड
ब्ला ब्ला Right. बॉलीवुड ब्ला ब्ला। मैं कई बार सोचती हूँ जब ये घर पे होती हैं और इनके फादर्स वहाँ बैठ के देख रहे हैं, लुक एट सो एंड सो, मतलब जो नेपो डॉटर्स हैं, और लुक एट हर बट, आपने कुछ नोटिस किया, एंड देन द कैमरा इज गोइंग स्ट्रेट ऑन हर बट्स और द कैमरा इज गोइंग स्ट्रेट ऑन हर ब्रेस्ट। इनके नेपो डॉटर्स के फादर्स भी तो देख रहे हैं, वो करेक्ट। कैसे देखते हैं वो लोग ये सब। ये पेपरजी सी आई एम हाँ नॉट ऑर्थोडॉक्स, आई एम अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन। बिल्कुल। मैं खुद भी ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ सब हम्म, कुछ, बट अगर मेरी बेटी होती और मेरा हस्बैंड वहाँ बैठ के देखे, is going right into her butt the camera, how will my daughter come and face her father every day? इतने इंसेंसिटिव कैसे, मतलब ये इंडस्ट्री मैं का आपसे पूछ रही हूँ, मतलब किस हद तक ये नेपो पेरेंट्स गिर गए हैं। आई थिंक द ओनली पर्सन जिसके साथ ये नहीं होता है सुहाना खान, हम्म, क्योंकि आई थिंक ना गौरी बर्दाश्त करेगी ये, ना शाहरुख खान। वो हम्म, तो सीधा कान के नीचे लगा देगा एक शाहरुख, हम्म, और वो इंस्टाग्राम के ऑफिस पहुंच जाएगा, वो जो भी अकाउंट होगा। सिर्फ सुहाना खान है जिसका ये सब नहीं चलता, और वो सुहाना की स्पॉटिंग भी हमने बिकॉज देखी। गौरी एंड शाहरुख विल नॉट टेक इट। राइट। दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल। आपने जब ये बात की ना तो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से सुहाना की स्पॉटिंग हम नहीं देखते इस तरह से, लेकिन हम दूसरे स्टार्स की देखें तो आए दिन पेपरजी उनके जिम के बाहर और इस सारी चीज़ों पे रहते थे। एक हाँ, एक सुहाना खान है हम्म, और एक सारा अली खान है, और वहां पे मैं क्रेडिट सिर्फ सारा अली खान को ही देती हूँ, ओके। बिकॉज अगेन शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रोकन होम। हम्म, और उनकी मॉम जो है अमृता सिंह, वो बहुत लो प्रोफाइल है, वो मीडिया में नहीं आती है। राइट। तो वहाँ पे अगर इब्राहिम अली खान और सारा अली खान ने अपने आप को खुद मैनेज किया है, आई गिव फुल क्रेडिट टू दोस किड्स। हम्म, आई रियली एडमायर बोथ ऑफ देम। इब्राहिम अली खान इतना ग्राउंडेड बच्चा है, उसको इतना मतलब बैशिंग की जाती है उसकी सोशल मीडिया पर। ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी वेल बिहेव्ड। पता नहीं क्यों उसको इतनी हेट मिलती है, इतना ट्रोल किया जाता है, व्हाई? ही इज सच अ वेल मैनर्ड बॉय। ओके। ठीक है, उसको थोड़ी स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, ऋतिक को भी तो थी। करेक्ट। यू कैन वर्क ऑन दैट विद स्पीच थेरेपी। ही इज अ वेरी वेल मैनर्ड, वेरी वेरी वेल बिहेव्ड guy. He needs to be given a second chance or a third chance. Don't just write him off as a nepo kid and चलो उसका करियर बर्बाद कर दो। सारा अली खान के आपने कितने गंदी फोटोज देखी हैं जहाँ पे उनकी कोई बॉडी पार्ट दिख रहा है ना वल्गर वे। उसको आपने कभी वल्गर आउटफिट्स में देखा है? नहीं। कभी नहीं। सो दीज आर द ओनली 3 किड्स हु आर मैनेजिंग देमसेल्व्स वेल। और सारा के पास, इब्राहिम के पास तो उनकी ना पेरेंट्स की सपोर्ट है ना कुछ। करते तो दे है। डोंट इवन हैव इनसेन मनी आल्सो। सैफ की तरफ से मैं हेल्प। क्या है? क्या हेल्प है? किसने लॉन्च किया उनको? उनके पास कोई इनसेन सपोर्ट तो नहीं है, राइट। आउट ऑफ द वे सपोर्ट तो नहीं है उनके पास। ओके। हम लड़कों का क्या हाल है, अगर जैसे आपने बताया लड़कों का क्या हाल है ये? देखिए यहाँ पे अगर हम, आई गेस वी आर गोइंग टुवर्ड्स कास्टिंग डायरेक्टर्स नाउ। अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ चॉइस दैट यू कैन से नो। बट यहाँ पे सब अभी जो आउटसाइडर्स आते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो खुद ही ना नहीं बोलना चाहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को। और ठीक है, एक दो बड़े नाम है कास्टिंग डायरेक्टर्स के, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं ना हर्ष, वो खुद ही गे हैं। मेरे खुद के वो फ्रेंड्स हैं, ओके। वो ओपनली गे हैं। तो ये जो स्ट्रगलर्स उनके ऑफिस के बाहर जाके लाइंस लगाते हैं, उनको पता है वो गे हैं, लेकिन वो खुद जाते क्यों हैं फिर? करेक्ट। वो क्या है ना, 4 5 10 साल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर बोलते हैं छोड़ दो यार हम जाएंगे, वो खुद जाते हैं। राइट। तो हम कास्टिंग डायरेक्टर्स को क्यों ब्लेम करें? वो तो अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं कैबिन में, बाहर 100 लड़कों की लाइन क्यों लगी है? उनको पता है ये बंदा गया है, वो जाते हैं ना। 2 2 3 3 साल जाके वहां पे लाइन लगाते हैं, क्यों जाते हैं? आपको पता है वो कास्टिंग डायरेक्टर गया है, आप क्यों जा रहे हो अंदर? यू नो यू आर गुड लुकिंग, यू नो आपने जिम में बॉडी बिल्डअप किया, आप सेक्सी लगते हो, गुड लुकिंग लगते हो, वो क्या आपको छोड़ेगा? फिर भी आप जाते हो, तो कहीं पे गलती दोनों तरफ से। दोनों तरफ से राइट। आज अगर मुझे पता है कि अंदर बैठा हुआ बंदा हैवान है और वो ठरकी है, मैं फिर भी जाऊंगी वहां पे। करेक्ट।
तो फिर मेरी भी तो कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है ना। क्यों समझते कि ये कास्टिंग डायरेक्टर का जो टर्म है क्यों इंट्रोड्यूस किया? पहले हम नहीं देखते थे ये नया टर्म जो लाया गया, और क्या ये किस तरह हेल्प करता है या किस तरह से करता है? मुझे तो लगता है ना ये कास्टिंग डायरेक्टर्स जो ये बन गया है ना आज, एक बहुत ही रेलेवेंट टर्म है। इसके फायदे कम है और नुकसान ज्यादा है। बट फर्स्ट लाइक यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन, हम ये पहले डिस्कस करते हैं कि कहाँ से आ गया। ठीक है। देखिए, पहले तो आमिर खान की मूवी लगान आई, जहाँ पे उनको बहुत सारे एकदम रियलिस्टिक लुकिंग कैरेक्टर्स चाहिए थे। तो लगान आई आई थिंक अर्ली 2000s में। फिर आई स्लम डॉग मिलियनेयर 2008। तो वो एक बाहर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मूवी बनाई थी। राइट। तो उनके लिए उनको बहुत ज़बरदस्त कास्टिंग चाहिए थी। और फिर वहाँ से उनको ऑस्कर्स वगैरह भी मिले बहुत सारे। तो एकदम फिर ना ये एक प्रोफेशन सीरियस हो गया कि वी नीड रियल कास्टिंग, क्योंकि उसमें छोटे से छोटे बच्चे से लेके टीनेजर से लेके सीनियर एक्टर्स तक उनको चाहिए। तो वहाँ से ये कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्टिंग एजेंसीज आ गई। ठीक है। और फिर क्या हुआ, हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को और हर एक्टर को चाहिए था कि मेरी फिल्म अब ऑस्कर्स में जाए। तो दे डिसाइडेड कि हम तो भाई प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो वहां से कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए। ओके। बट आज भी अगर आप मेरे से पूछो ना, तो जितने भी बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो अपने बंदे आप ही लेंगे। अच्छा। हर नेपो बंदों को लेंगे, या जिनको भी उन्होंने साइन करना है, दे विल स्टिल गो द ओल्ड फैशन वे। ओ, मतलब वो जो हाँ। हीरो हीरोइन की चॉइस है वो तो उनकी होगी। यस। और कास्टिंग डायरेक्टर से पहले क्या होता था, ये शुरू से चल रहा है, ओके। जब से बॉलीवुड है तब से चल रहा है। अरे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को बोलेगा, सुनना मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, सुनना यार मेरी बेटी है, मेरी भांजी है, उसको कास्ट कर ले। रिक्वायरमेंट क्या होती थी, लड़के की चॉकलेट बॉय लुक्स हो, हैंडसम हो, सही है। और लड़की खूबसूरत हो, उसको डायलॉग बोलने आते हैं नहीं आते, डांस आता है नहीं आता है, सीख लेंगे, उसको डाल देते थे मूवीज में, खत्म। खत्म। तो पहले क्या होता था, स्ट्रगलर्स कौन होते थे, जितेंद्र, जिनके कोई अंकल ज्वेलरी सप्लाई करते थे मूवीज में, राजेश खन्ना जो अपनी इम्पोर्टेड इम्पाला गाड़ी में स्ट्रगल करने जाते थे, करेक्ट। है ना। तो इनके ऑलरेडी कनेक्शंस होते थे। फिर आए शाहरुख खान, जो कफ परेड में विवेक वासवानी के साथ रहते थे, ऑलरेडी टीवी सीरियल्स कर चुके थे। फिर अक्षय कुमार आए, उन्होंने धक्के खाए बहुत, लेकिन ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ गुड पढ़ा लिखा फैमिली। राइट। इधर लोखंडवाला में रहते थे। तो तब क्या होता था, 100-200 लोग आ जाते थे बाहर से। ओके। फिर जैसे ये सब कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह आ गए ना, कास्टिंग एजेंसीज, मुझे लगता है इन्होंने ना बेड़ा गर्क कर दिया बॉलीवुड का और हमारे नौजवानों का, कैसे? यंगस्टर्स का। प्लीज समझाइए। अब क्या होता है, पहले आते थे एक साल में 100-200 लोग, 2-3 साल धक्के खाते थे, ना उम्मीद होके चले जाते थे, क्योंकि तब कास्टिंग डायरेक्टर्स और उनके ऑफिसेज नहीं होते थे। ये लोग आते थे और जाते थे प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज में, या सेट्स पे कौन जाते थे अपनी फोटोज लेके। 1 साल 2 साल धक्के खाए, लॉटरी निकल गई तो बन गए नहीं तो स्टार्स, फिर नहीं तो घर वापसी। करेक्ट। अब पूरा आराम नगर जो बॉम्बे के वर्सोवा एरिया में है, ये जो अंधेरी में माडा और मॉडल टाउन है, यहाँ पे तो ढेरों कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेज हैं। और आज लोग हजारों लाखों की गिनती में मतलब एस्पिरेंट्स आते हैं, गर्ल्स बॉयज, और यहाँ पे आते हैं वो 18-19 साल की उम्र में, और मैं देखती हूँ वो लगे रहते हैं। आज उनकी 50 साल की उम्र हो गई है, एंड दे आर स्टिल नॉट गिविंग अप होप कि मैं हीरो बनूंगा, मैं हीरोइन बनूंगी। और पैसे उनके पास होते नहीं है, फिर उन्हें यही सब करना फिर वो जिम में घुस जाते हैं, पहले अपनी बॉडी बनाने जाते हैं, फिर वो जिम ट्रेनर्स बन जाते हैं लड़के, रात को वो जिगलोस बन जाते हैं, लड़कियां स्टंट वगैरह करती हैं इन मूवीज, धक्के खाती हैं ऑडिशंस में, और रात को वो एस्कॉर्ट्स बन जाती हैं। और आप बोलते हैं कि बॉलीवुड के स्टार्स ड्रग पार्टीज करते हैं, आप इनको देखो कितना गांजा पीते हैं। ये लोग कोकेन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ये लोग एमडी करते हैं। इतना गंदा इनकी, इतनी गंदी इनकी लाइफस्टाइल है
आप रात को खड़े हो जाओ ना आरटीओ की गली के सामने मेन रोड पे, आपको सब खुद दिखेगा। राइट। तो ये लोग 19-20 साल की उम्र में आते हैं स्ट्रगल करने, और 50 साल हो जाते हैं। इन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, इन्होंने सिर्फ स्ट्रगल की होती है, ऑडिशंस दी होती हैं, और इनके पास कोई हुनर नहीं होता दूसरा। 50-60 की साल की उम्र में, 48-50 साल की उम्र में जिमिंग वगैरह भी नहीं कर सकते, तब तक ये जिम ट्रेनर भी नहीं बन सकते, फिटनेस एक्सपर्ट्स। फिर ये लोग घर चले जाते हैं, कोई पठानकोट चला जाएगा, कोई अंबाला चला जाएगा, समझ। यू नो राइट। और फिर घर जाके क्या करेंगे? तब तक शादी भी करने के लिए उम्र निकल चुकी होती है, और इनके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता कि इनको कोई नौकरी दे दे, कुछ नहीं। माँ बाप भी तब तक बूढ़े हो चुके होते हैं। करेक्ट है। देखो कितनी गंदी लाइफ है ये। राइट। और अगर ये कास्टिंग डायरेक्टर्स ना होते ना, तो इतने लाखों की गिनती में लोग यहाँ नहीं आते। वो कौन लग रहा है मैम कि जिस तरह से कास्टिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, आपको लग रहा है इस अच्छा काम कर रहे हैं? हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर्स जो लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वो कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं बॉलीवुड में? आज कितने नवाजुद्दीन, इरफान खान और राजकुमार राव बनते हैं? ओके। और कितने सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, कितने सनी देओल, बॉबी देओल, और मतलब संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, कितने सारे वो बनते हैं। और आप अगर आउटसाइडर्स देखो तो कितने सुशांत सिंह हैं, कितने आयुष्मान खुराना हैं। तो इज इट रियली वर्थ इट? मुझे लगता है ये कास्टिंग डायरेक्टर्स जो आ गए हैं पिछले 20 साल में, 10-15 साल में, इन्होंने तो इंडियन यूथ को एकदम गुमराह ही कर दिया है। यहाँ पे आके वो 30-30 साल धक्के खा के वापस वापस अपने घर चले जाते हैं, तब तक इनके लिए कुछ रहा ही नहीं गया होता है। ना इनकी शादी हो सकती है, वहाँ पे जाके छोटी-छोटी जिम खोल लेंगे, कुछ कमा नहीं सकते हैं, इनके पास कोई है ही नहीं ना कोई और अ, मतलब टैलेंट। राइट, राइट। मैम एक चीज़ बताइए ना कि जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टार्स जो है अब बड़ी-बड़ी गाड़ियों से जो इनके स्ट्रगल्स आपने बताए, तो कई बार कुछ स्टार जैसे हम देखते हैं कि फेक नैरेटिव्स भी क्या क्रिएट करते हैं कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे ऐसा कुछ है नहीं। लाइक अगर जैसे शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बार इस तरह का दिखाते हैं कि मैं इस तरह से मुंबई आया, इस तरह से आया, बट अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जाती है। सो इस तरह का जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है, क्या ऐसे नैरेटिव सेट किए जाते हैं? डू यू थिंक? देखिए, आई डोंट थिंक कि शाहरुख ने कभी भी ये कहा है कि मैं गरीब घर से आया हूँ। शाहरुख खान की जो कमांड है वो इज इंग्लिश और हिज हिंदी। और शाहरुख खान जिस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, ही डजंट कम अक्रॉस एज अ पुअर पर्सन इन एनी वे। उनकी फर्स्ट इंटरव्यू व्हेन हेमा मालिनी वाज लॉन्चिंग वाज विद मी, हिज फर्स्ट फोटो सेशन वाज विद मी, एंड आई एम यंगर देन हिम बाय द वे। तो शाहरुख खान ने ये दावा कहीं नहीं किया कि आई एम अ पुअर पर्सन। नो, उन्होंने ये बात बताई होगी उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो हाँ उन्होंने स्ट्रगल किया है यार। गंदे गंदे वो शोज थे जो हिट हो गए उनके। तो अगर शाहरुख खान में इतनी पावर होती कि उन्होंने अपना पीआर नैरेटिव कंट्रोल किया है, तो जब आर्यन खान को वो आपके मिस्टर समीर वानखेड़े ने बैंड बजाया, झूठा बैंड बजाया, हाँ, आर्यन खान तो बेचारा झूठा फंस गया, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसको इतनी गंदी तरह इल ट्रीट किया गया वहाँ पे। वो बच्चा वो टॉर्चर कभी जिंदगी में ओवरग्रो नहीं कर सकेगा, ओवरकम नहीं कर सकेगा आर्यन खान। राइट। अगर शाहरुख खान के पास इतनी पावर होती कि वो अपने पीआर नैरेटिव को हमेशा कंट्रोल कर पाते, तो टुडे ही हैज मोर मनी एंड मोर पावर देन ही हैड व्हेन ही वाज अ न्यूकमर। जब उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि उन्होंने तब भी अपने आप को बेचारा गरीब दिखाया, तो आज तो उनके पास इतना पैसा है, इतनी पावर है, इतना स्टारडम है, वो अपने बच्चे को ही नहीं बेचारे को प्रोटेक्ट कर पाए। तो क्या कहाँ से उनके पास पावर है? कौन सा पीआर नैरेटिव वो कंट्रोल कर पाए? बेचारा आर्यन खान कितना
मतलब ट्रॉमेटाइज हुआ है वो बच्चा। मैम अमिताभ बच्चन के बारे में भी चीज़ें जैसे वो कहा जाता है था कि वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन बड़ा नाम थे, उनकी माताजी जो थी उनकी दोस्ती थी जैसे इंदिरा गांधी के साथ, तो इस तरीके से तो एक बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बैकअप था। लेकिन जब बातें आती है तो कहा जाता है कि इनकी जो स्ट्रगल है बॉलीवुड में, इन्होंने एक स्ट्रगल देखा है, उस पर मैं जानना चाह रहा था। देखिए अमिताभ, ही इज वेरी मीडिया savvy। हम्म वो अपने आप को बहुत मतलब पैकेजिंग करके अपने आप की बहुत अच्छी तरह, ही इज़ वेरी मीडिया savvy। और वो हमेशा एक जर्नलिस्ट होते थे, पहले बहुत एक्टिव थे, अभी कम एक्टिव हैं, सुभाष झा। हम्म उनके थ्रू ही वो अपना पूरा पीआर नैरेटिव संभालते थे। ओके यहाँ मैं मानूंगी कि अमिताभ बच्चन वेरी वेरी हम्म स्मार्ट, ही नोज हाउ टू प्रोजेक्ट हिज इमेज। यस, हम्म ये मैं मानूंगी। और वो एक एक शब्द एकदम नाप तोल के बोलते हैं। हम्म लेकिन जहाँ तक उनका पीआर स्किल है, वो उनकी वाइफ पर आके तो फेल ही हो जाता है ना। हम्म जया बच्चन को कौन कंट्रोल कर सकता है। करेक्ट और यस, उनकी फैमिली बहुत कनेक्टेड थी। बट यस, अब जो उनकी स्ट्रगल थी, उनकी आवाज़ के लिए, उनकी हाइट के लिए, उनकी लुक्स के लिए उनको रिजेक्ट किया गया, वो स्टोरीज तो सच्ची हैं। हम्म बट जहाँ तक अभी इतने सारे रूमर्स आते हैं, कभी उनकी मतलब ग्रैंड डॉटर आराध्या को राइट अटैक किया जाता है, बहुत अनफेयर है। अनफेयर है राइट अ, और फिर अभिषेक और ऐश्वर्या राय को लेके कितने आई मीन नेस्टी रूमर्स दिए जाते हैं। राइट आज क्या है ना, आज सोशल मीडिया की वजह से कोई भी कुछ भी एक हद तक स्टार कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो चुका है ना, जो लेजिटिमेट जर्नलिस्ट हैं वहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आज बहुत सारे सेल्फ मेड जर्नलिस्ट आ गए हैं, राइट जिनमें कोई भी ना क्वालिफिकेशंस हैं, ना ही उनकी एक्सपीरियंस पहुंच है है, और ना ही आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में बैठ के वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म है ही नहीं है। इतना इमोरल, अनएथिकल बिहेवियर है उनका। वो किस चीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं एकदम, वहाँ पे तो अमिताभ की भी नहीं चल सकती है। आज जो उनकी बीवी कर रही है, वो अपनी बीवी को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जया बच्चन को वो मीडिया और सोशल मीडिया को क्या कंट्रोल करेंगे। सबसे डैमेजिंग मीडिया तो उनके घर में ही बैठा हुआ है, और उनका नाम है जया बच्चन। तो आगे क्या बोले अब। मुझे एक चीज़ समझनी, जब हम स्टार किड्स नेपो किड्स बात कर रहे थे, ये बिग प्रोडक्शन हाउसेस की क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों बार बार इन्हें रिपीट करते हैं, जबकि इनकी कई बार इनकी फिल्में नहीं चलती, बहुत बड़े लॉसेस भी होते हैं, पर हम देखते हैं कि ये उनसे निकल नहीं पाते, वो उन्हें रिपीट पे रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं। क्या समझ रखते हैं? क्या होता है ना, अब देखो जो आउटसाइडर्स भी आते हैं, जरूरी तो नहीं है कि उनकी पहली ही फिल्म हिट हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। तो उनकी भी पहली फिल्म्स कभी कभी फ्लॉप होती हैं। अगर आप कोई भी आउटसाइडर का भी करियोग्राफ देख लो, तो वो भी फर्स्ट फिल्म से स्टार नहीं बनते हैं। तो जो आउटसाइडर्स होते हैं उनकी भी थोड़ी फिल्म्स फ्लॉप होती हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते करियोग्राफ बढ़ता है, राइट। तो अब जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो इंडस्ट्री से ही हैं, वो जब नेपो किड्स को लेते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, वो नेपो किड्स की ऑलरेडी एक प्रीसेट वैल्यू होती है, एक प्रीसेट फेम होता है। मतलब कि वो एकदम रैंक न्यूकमर नहीं है। ऑलरेडी उनका एक नाम होता है, ऑलरेडी उनकी एक पेडिग्री होती है, ऑलरेडी वो किसी के स्टार किड होते हैं। तो एक एस्टैब्लिश्ड स्टार वैल्यू होती है, करेक्ट इवन बिफोर दे आर साइन फॉर अ मूवी। ऑडियंस ने ना उनके चेहरे देखे होते हैं, उनकी अपने स्टार पेरेंट्स के साथ फोटोज देखी होती हैं। तो इट इज़ ईजियर टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, एंड इट इज़ ईजियर कि वो ऑडियंस उनके साथ रिलेट कर पाएंगे। ओके ठीक है, राइट तो ये एक फायदा होता है। सेकेंडली, अब आपकी बात आई कि अगर वो फ्लॉप भी होते रहते हैं, तो उनके साथ दोबारा दोबारा वो फिल्म्स क्यों करते हैं। करेक्ट अब यहाँ पे एक तो बात बताई कि हर बंदे की फर्स्ट फिल्म तो हिट नहीं होगी, करेक्ट चाहे वो आउटसाइडर हो या वो नेपो किड हो। यहाँ पे दूसरी बात ये होती है कि देखो, ये नेपो किड्स हैं, तो इनके माँ बाप के पास पैसा तो है। अब इनको लॉन्च करने का स्किल नहीं है इनके पेरेंट्स के पास।
लेकिन पैसा तो है। ऐसा तो है। तो बहुत बार ये क्या होता है कि इनका गोस्ट फाइनेंसिंग होती है, घोस्ट फाइनेंसिंग। गोस्ट प्रोडक्शन। ओके। मतलब कि डायरेक्टर हाँ। कोई और अच्छा टैलेंटेड डायरेक्टर है, बड़ा नाम है, इनके जो नेपो किड्स हैं, इनके पेरेंट्स को प्रोडक्शन डायरेक्शन की समझ नहीं है, लेकिन पैसा है। तो ये लोग बोलेंगे यार तू मेरे बच्चे के साथ 4-5 फिल्म्स बना दे, फ्लॉप भी हो रही है ना, हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग तेरे को दे देंगे यार 15-20 करोड़ एक मूवी का, ठीक है। लेकिन तू मेरे बच्चे की जिंदगी बना दे। तो घोस्ट प्रोडक्शन होता है, घोस्ट फाइनेंसिंग होती है। ओके। जैसे कि रणवीर सिंह आज तक डिनाई करते हैं, लेकिन रूमर कब से चल रहा है कि उनके डैड ने 10 करोड़ रुपया दिया था वाईआरएफ को उनको लॉन्च करने के लिए। ओके। अब ऑफिशियली रणवीर सिंह ने हमेशा डिनाई किया है, तो मैं ये स्टोरी यहीं पे रिजॉइंडर के साथ कहूंगी कि रणवीर सिंह आज तक वो डिनाई करते हैं। बच्चों की ना ऑलरेडी मार्केट बेस बन चुकी होती है। अभी आप एक नए एक्टर को ले लो, उसको आपको कितना प्रमोट करना पड़ेगा, उसको आप पीआर मार्केटिंग पब्लिसिटी देने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्चने पड़ेंगे। राइट। ये बच्चों को एक तो दे आर वेरी मीडिया savvy, दे नो हाउ टू बिकम फेमस बिकॉज दे ऑलरेडी बचपन से इन्होंने देखा है। कैसे जब ये 2-3 साल के थे और अब जब ये 20 साल के हो गए हैं, दे नो हाउ टू हैंडल मीडिया, they know how to handle fans, they know how to handle controversies, they know how to handle attention. ठीक है? So they also know how to handle नेगेटिव स्टोरीज, बिकॉज ये देख देख के बच्चे बड़े हुए हैं जहाँ पे उनके माँ बाप के साथ ये सब हुआ। राइट। ये लोग 2-3 साल के होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, तब से देख रहे हैं और अब ये बड़े हो गए हैं, तो इनके साथ अगर कोई कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, दे नो हाउ टू हैंडल इट, राइट। दे आर कंडीशन टू डू दैट। राइट। अब जब कोई नया आउटसाइडर आता है, उसकी तो एक नेगेटिव स्टोरी आ गई ना, वो बेचारा पसीने पसीने हो जाएगा कि अब तो मेरी तो लाइफ खत्म, लाइफ है। मेरा करियर खत्म, मेरे हाथ से सब फिल्म चली जाएंगी। करेक्ट। ये लोग है ना बेचारे कंडीशनड होते हैं, ढीठ होते हैं, तो इनकी कोई नेगेटिव स्टोरी आ गई, कोई लिंक अप आ गया, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट। बट मैम रणवीर सिंह के केस में हम देखते हैं ना कि उनके जो पुराने ऑडिशन के क्लिप्स हम देखते हैं कि किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो हर बंदे को करनी पड़ती है। हाँ। आज भी सलमान को जिम में जाना पड़ता है, आज भी शाहरुख खान को जिम में जाना पड़ता है। एवरी स्टार, whether it's Vicky Kaushal for Chhawa, he had to work on his new look. Whether it is a Ranbir Kapoor, he has to work on Ramayan today. Not just his looks, बेचारे रणबीर कपूर को तो ये भी दिखाना पड़ता है that he is a devout Hindu because उनकी रामायण आ रही है। वो तो बेचारे डाइनिंग विद द कपूर्स ऑन नेटफ्लिक्स, वो स्टील के ग्लास में पानी पी रहे थे कि वाइन पी रहे थे, अब मुझे नहीं पता, लेकिन अब उनको बार बार ये साबित करना पड़ रहा है कि ही इज अ गुड डिवाउट हिंदू। वो नॉनवेज नहीं खाते, वो अल्कोहल नहीं पी रहे, कहीं पे गलती से भी वही सिगरेट के साथ पकड़े गए ना तो उनका राइट। डन हो जाएगा काम। तो मेहनत तो हर बंदे को करनी पड़ती है, whether you are a nepo kid or whether you're an outsider. If you don't work hard on your looks, on your image, you know, or your PR activity, your interviews, you have to make sure that every word that you speak here is planned and it's plotted. राइट। So that anybody and everybody has to do. But तो रणवीर का भी backfire हो गया. He was always, you know, very experimental with his looks, his fashion sense, and that really worked for him. राइट। But then he went and did those Nangu Pangu pictures where he was not wearing anything supposedly. राइट। उनको जाके delete करनी पड़ी ना। राइट। राइट। हाँ। तो everybody makes mistakes, but then you move on, and luckily public memory is very short, so it's hopefully forgotten and it's a thing of the past. राइट। तो फिर वो वही है ना फेक नैरेटिव्स जो हम बात कर रहे Also, हैं। हाँ। Ranveer ka, you cannot, you know, discount the fact that he's a very very talented actor. हाँ, ये तो सही कहा। रणवीर में टैलेंट तो है ना, हम्म। तो हम उसको सिर्फ ये कह दें कि उनके डैड ने 10 करोड़ दिए थे, बट उन्होंने मेहनत करके अपनी जितनी भी उनकी हिट फिल्म्स हुई हैं, he has done a very different role in each of his films, so you cannot take away the fact that Ranveer Singh is a very very talented actor. राइट। वही मैम मैं कह रहा था कि वो जो फेक नैरेटिव्स वाली हम बात कर रहे थे, तो सेम वैसे विकी कौशल को लेकर भी ये चीज़ हम देख सुनने को मिलती है कि उनके डैड के भी तो अच्छे लिंक्स थे इंडस्ट्री में। अनुराग कश्यप के साथ हम सुनते हैं कि उनके अच्छे बॉन्ड थे, जबकि जिस तरह से स्टोरी बताई जाती है कि वो स्ट्रगल था उनका, एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यू नो जब उन्होंने वो उरी फिल्म की, हाउस द जोश, ये सब, और फिर उन्होंने जब वो
रामन राघव जो भी उनकी फिल्म थी वो सब की. आई रिमेंबर इंटरव्यूइंग हिम दैट टाइम एंड मैंने कहा हाउ डज इट फील टू बी द न्यू सेक्स सिंबल ऑफ बॉलीवुड. He started blushing. He's like, Simi, really? I mean, people actually calling me that. I said, yes. And तभी उन्होंने ये सब नैरेटिव नहीं यूज़ किया था. ये सब स्टोरीज ये बाद में आई हैं. अगर उनको सच में अगर सिंपैथी चाहिए होती तो वो तब बोलते ना ये सब, जब उनकी थोड़ी सी तब मूवीज फ्लॉप भी हुई थी. बट इन्होंने तब वो यूज़ नहीं किया. ये सब जो उन्होंने इंटरव्यूज दी थी कि मेरे डैड, हम लोग इतनी गरीबी में थे कि माय डैड वांटेड टू कमिट सुसाइड, और हम लोग एक चौर में रहते थे, एक छोटे से रूम में हम लोग इतने सारे लोग थे, हमारे पास खाना खाने के पैसे नहीं थे. ये सब उन्हें तब जाके बोला है जब वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश स्टार बन चुके थे. तो आई डोंट थिंक ही वाज यूजिंग दैट फॉर पब्लिसिटी, बिकॉज इन्होंने ये सब तब जाके कहा है जब वो स्टार बन चुके थे. बन चुके थे. तो आपने इतने टाइम लंबे टाइम में आपने बहुत सारे स्टार्स से मुलाकात की, बहुत लोगों से मिले. आपको सबसे फेक आर्टिस्ट कौन लगा कि ये जो दिखाता है वो है तो नहीं? ओके. वो बंदा पहले पहले ना ही वॉज वेरी वोलेटाइल. उसके बारे आप एक वर्ड भी लिख दो जो उसको अच्छा नहीं लगे, ही विल ओवर रिएक्ट. तो सॉरी, he was very touchy, he used to overreact, and he was oversensitive. Or I went away to America for a few years. I came back and I met him, and I met him at a film producer's house, and he had completely changed. And I told him that, I'm meeting you after 8 years, but you were overly sensitive, वो 2 घंटे बैठा रहा मेरे साथ कन्विंस करते हुए दैट नो ही इज नॉट लाइक दैट. तो मैंने उसको कहा इट्स अ ग्रेट चेंज, बट यू नो व्हाट, आई प्रिफर द ओल्ड हु वाज ओवर सेंसिटिव, बट एटलीस्ट यू आर शोइंग योर ट्रू सेल्फ. अब तो तू रोबोट बन गया है. और अब देखो, डू यू एवर सी हिम गेटिंग एंग्री? डू यू एवर सी हिम लूजिंग हिज टेम्पर? नहीं भाई. ही इज so loving to all his wives, all his girlfriends, everybody. He's the perfect husband even after the divorce. He's the perfect boyfriend. He's the perfect father. He's the perfect actor. He's the perfect star. He's flawless. सबसे फेक वही है. कितना ये अगर उनके अगर हम पर्सनल लाइफ देखें, थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ देखे तो जिस तरह से उनका सेपरेशन भी था, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम देख रहे सारी चीज़ें हुई. वो तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसमें आप क्या समझ रखते हैं? क्या ये इतना ईज़िली इतने सिंपल तरीके से ये सेपरेट हुए हैं? मनी 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 हनी 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 मनी मनी, ऐसे कभी हो सकता है क्या? इवन ही इज अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी. तो ठीक है, यू डोंट बिकम एनिमीज, बट ये कैसा प्यार उमड़ता है आफ्टर द डिवोर्स. आपकी बेटी की शादी हो रही है एंड यू एंड किसिंग अवे सो इंटीमेटली. मुझे तो कुछ समझ नहीं आता. या तो हम पागल हैं या वो पागल हैं. तो मतलब या तो हम पागल हैं और उनका तो दिमाग ही खराब है ना? तो इज इट पॉसिबल? थोड़ा सा वियर्ड और एबनॉर्मल लगता है मुझे ये तो. तो उनकी बीवियां भी तो सारी हट गई हैं ना जैसे वो हैं. तो आई फाइंड दैट वेरी वियर्ड एंड एबनॉर्मल इफ यू आस्क मी. और ये भी जो उनकी है, डोंट थिंक कि इनकी शादी वादी होगी. ये भी 1.5-2 साल में खत्म हो जाएगा. इट विल नॉट लास्ट. क्या मैम क्यों इस तरह का नेचर उनका अगर आप जान रहे हो उन्हें तो कैसे क्यों क्या समझ रखते क्यों इस तरह से है देखो मैं पर्सनैलिटी? साइकियाट्रिस्ट तो हूँ नहीं, हम्म. बट he has obviously gone through a lot of trauma when he must have Hmm. been growing up in his formative years between his parents, and that has affected him. Okay. And he's looking for a perfect relationship, a perfect marriage. He is always looking for perfection. Okay, you're looking for perfection in your work, वो तो हम समझे. लेकिन perfection in human relationships it's not possible ना. हम कोई कस्टम मेड थोड़ी हैं. मतलब आप क्या एक सूट बनाने जा रहे हो? आप कोई टेलर के पास तो जा नहीं रहे हो, एक डिजाइनर के पास कि आई वांट माय सूट लाइक दिस, आई वांट माय ब्लेजर लाइक दिस, आई वांट माय पैंट लाइक दिस, आई वांट दीज मेजरमेंट्स. नो, यू आर लुकिंग फॉर अ वुमन and you're looking for a relationship. How can she be made custom made? So he gets disappointed because he's looking for perfection even in his romantic relationships. How is that possible?
हमने उनका साथ भी नाम सुना। इज देयर एनी ट्रू? बहुत कुछ था। हाँ। मैं तो कह रही हूँ ये शी इज द न्यू मैन ईटर ऑफ बॉलीवुड। एक दिन करेंगे स्टोरी उन पे। ओके। सबसे बड़ी मैन ईटर वही है आपकी। नेक्स्ट टाइम करेंगे हम उनकी फुटेज वुटेज के साथ। बहुत मसाला उनके ऊपर। हाँ हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। आपने कई सारी पार्टीज कवर की है। आजकल हम एक ट्रेंड देखते हैं, एक टर्म सुनते हैं, दुबई पोटा पार्टी। क्या है ये पोटा पार्टी में? देखिए अरब्स तो हैं ही वियर्ड। चाहे आप अरब्स की बात करो या उनकी बीवियों की बात करो। बेचारे यहाँ से जो हमारे गरीब लोग वहाँ पे ड्राइवर्स की नौकरी करते हैं शेखास के लिए, मतलब कि जो शेख्स की वाइफ्स के लिए, वो बेचारे हमारे ड्राइवर्स को ही कितना हरास करती हैं। और अगर हमारे ड्राइवर्स पकड़े गए तो वहीं पे उनको डेथ सेंटेंस मिल जाता है। तो वो तो है ही वियर्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो ऐश करते हैं ना हमारे स्मॉल टाइम फ्लॉप एक्टर्स, ये हमारी मीडिया वाली, जो हमारी ये पापराजी की पापलेट्स हैं। मैं उनको तो स्टारलेट्स भी नहीं बोलूँगी, ये तो सब पापलेट्स बन गई हैं। ये सब आपके समझ ही लो, जो नाम है, जो बोलती हैं मीडिया, मीडिया के आगे आती हैं। हाँ। उनको तो मीडिया भी ठीक से बोलने नहीं आता, मीडिया मीडिया करती हैं। हाँ। ये लोग क्या करती हैं दुबई में? ये लोग सब वहाँ पे घर खरीद के बैठी हैं। कोई बोलती हैं उनको किसी अरब ने, उनकी कोई एडमायरर ने उनको 24 कैरेट गोल्ड का केक भेज दिया। हम्म। पता नहीं कैसे हजम करती हैं वो खाकर, काट कर। हम्म। तो ये सब जाती हैं वहाँ पे। और इनकी तो बात छोड़ो, मैं ऐसी ऐसी एक्ट्रेसेस को पहचानती हूँ who are in their late 50s, mid 60s. ओके। Bollywood is a big craze with हम्म। Arabs, ओ। you know, हाँ। and they love to watch movies that have our Muslim stars. हम्म। और बॉलीवुड का क्रेज अभी भी है वहाँ पे। I actually know of one retired actor. She's now retired, but हम्म। अभी भी सेमी एक्टिव है वो। वो क्या करती थी, दुबई के मॉल्स वगैरह में जाती थी या उनको जब पार्टीज में बुलाया जाता था ना, हम्म। वो अपने साथ अपनी पुरानी मूवीज के पोस्टर लेके घूमती थी। ओके। तक। और वो अपना पोस्टर दिखा देती थी, हाँ। तो द अरब्स वुड पिक हर अप। ओके। वो वहाँ के जो शेख्स है ना, दे आर वेरी वेरी बॉलीवुड क्रेजी। मतलब दे लाइक टू गो एंड वॉच क्रिकेट मैचेस, बट उनको इतना क्रेज वो नहीं है। हम्म। एक तो है ठरकी व्हेन इट कम्स टू वुमेन, बट बॉलीवुड की हो, चाहे वो अभी ओवर द हिल भी होगी अपनी एज के हिसाब से, दे लाइक टू स्पेंड टाइम हम्म। with the Bollywood actresses. राइट। Doesn't matter what the age is. राइट। तो ये जो एक्टर थी, हम्म। ये अपने पुराने अपनी जवानी के दिन के पोस्टर्स लेके घूमती थी एक्चुअली, और दिखाती थी, और शी टू गेट पिक्ड अप। ये और ओके। फिर जो किया सो किया होटल के हम्म। रूम में। फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड दे देता था, हम्म। और ये लेके जाती थी क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग कर ली, अपनी फीस भी ले ली हम्म। फॉर स्पेंडिंग इंटीमेट टाइम इन द होटल स्वीट, एंड हो गया काम। ओके। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनका प्राइम सीजन होता है सितंबर टू मिड जन। ओके, ये ड्यूरिंग में ज़्यादा होता है। मैम ये जो जब फिल्में नहीं मिलती, काम नहीं होता, तो सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ें थी? सर्वाइवल नहीं, थ्राइवल। ये लोग तो थ्राइव करते हैं। आप इनको देखो ना, ये लोग इतने एक्सपेंसिव वॉचेस, इतने एक्सपेंसिव बैग्स, अगर फेक भी हों तो भी महंगे वाले हैं ना। दे आर फर्स्ट कॉपीज, और या उनको क्या कहते हैं शायद, आई थिंक दे कॉल देम मिरर मिरर कॉपीज और ओके। समथिंग। तो दे ऑल्सो कैरिंग लॉट ऑफ लग्जरी गुड्स। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है? हम्म। दे हैव नो टीवी शोज, दे हैव नो मूवीज। ये लोग वहां जाके क्या करते हैं? और ये लोग बोलते हैं हम लोग शो पे गए थे। आपको क्या लगता है कि जो एनआरआईज हैं दुबई के, वो ये सब पापराजी की जो लड़कियां हैं उनको जाके लाइव शोज में देखेंगे पैसे देके? नो, दे राइट। आर ऑब्वियसली सर्विसिंग द अरब्स। राइट।
और ये क्या है एक्चुअली यहाँ पे तो सबसे फेमस तो उनका तो बहुत इतने सालों से रूमर था, अब उनकी शादी हो गई है तो शायद वो शरीफ बन गए हैं, ओके। बट उनका बहुत रूमर चलता था कि ही सर्विसेज द अरब्स एंड he he's very good looking according to them and he was a hot favorite with the Arab men, ऐसे सुना है। अच्छा। हाँ, इनका allegedly बहुत नाम घूमता था सर्कल्स में। हुँ। और वहाँ पे ये तो काफ़ी देर से हमने सुना है, जितने भी ये सोशल वर्कर्स हैं ना जो इनको रेस्क्यू करती हैं हुँ। गर्ल्स को, हुँ, जो हुँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग राइ में राइट। गर्ल्स यहाँ से ली जाती हैं, हुँ। बॉम्बे से, इंडिया से, जो दुबई फंस जाती हैं हुँ। जाकर। उन्होंने खुद बोला है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा किंकी स्टफ होता है, फेटिश स्टफ होता है, जिसको ये पोर्टर पार्टीज बोलते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज इट्स सो डर्टी एंड ओके। सो शेडी। इफ द व्यूअर्स आर इंटरेस्टेड दे शुड गो एंड गूगल द वर्ड। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। हुँ। तो ये लड़कियों को ऐसे थोड़ी ना 22 कैरेट्स का गोल्ड का केक मिल रहा है यहाँ पे। हुँ। और उनके वहाँ पे फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स विद स्विमिंग पूल बन गए हैं। हुँ। कैसे बन रहे हैं? राइट। कोई ऐसे तो नहीं दे रहा। हुँ। ये जो पोर्टा पार्टीज हैं, हुँ। गंदगी है, इज लिटरली शिट। राइट। दिस पार्टीज आर फुल ऑफ शिट राइट, इज ऑल आई राइट। से विद ऑल पन्स इंटेंडेड। हुँ। तो ये लोग, ये गंदगी है वहाँ पे। हुँ। और बॉलीवुड का क्या है ना, इनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। हुँ। और इनको लग्जरी की गंदी लत लग चुकी है। हुँ। तो काम तो है नहीं इनके पास, राइट। असाइनमेंट्स तो है नहीं है, हुँ। and but they want to maintain their standard. हुँ। They want to have luxury cars for which they have to pay EMIs. हुँ। 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, 7-8 करोड़ का घर खरीद खरीद लिया, लिया। तो EMIs कहाँ से आएंगी? तो यहीं हुँ। से आती हैं फिर EMIs। हुँ। ये तो छोड़िए, एक दिल्ली की गर्ल है, गर्ल नहीं लेडी है, ओके। एंड शी इज मैरिड टू अ ब्रास ट्रेडर, ओह! वेरी ऑर्डिनरी फैमिली, हाँ। and she tells people she's not married. But the अच्छा। husband is quite okay. She's a regular going to Dubai. कहने के लिए वो सिंगर हैं. She used to be very ordinary dressed before. अब तो she's all made up. Everything, her face and all has changed. हुँ। कहने के लिए वो सिंगर हैं, बेसुरे गाने गाती हैं. हुँ। Totally changed her looks and everything now. हुँ। And earlier she used to only have one black Chanel bag. Now you see her with different labels, from head to toe. हुँ। She's like a showcase of all luxury labels. And complete change in her lifestyle in the last 10 years. फेमस सिंगर है? No, no, struggling, स बेसुरी है भाई। ओके। वो जबरदस्ती पार्टी में अभी गाने शुरू हुए तो हमको सुनना पड़ता था। ओह! अच्छा। हाँ, एंड टोटली सप्लाई होती हैं भाई वो। पहले उन्होंने कोशिश किया कि जो वहाँ के NRIs हैं एकदम हुँ। वेल्दी वाले, वो सर्कल में पेनिट्रेट हों, वहाँ पे उनकी दाल नहीं गली। ओके। तो अब वो यही कुछ करती हैं वहाँ पे। हर 10-15 दिन के बाद वो दुबई पहुंची होती हैं, हुँ। एंड हेड टू टो labels ही labels, luxury labels ही labels. राइट, And she lives in her Delhi home राइट। where she and her sister are married to 2 brothers. They are very, very average middle class existence, हुँ। Kashmiris, हुँ। and they are still married, but they claim they are not. हुँ। But I have seen a legal notice where she has claimed that she's married and somebody has tried to damage their reputation. ओके। तो I know for a fact that she's married, but husbands भी तो उनको भेजते हैं ना. हुँ। एंड कोई फोटो में वो हिजाब पहन के बैठ जाती हैं, कोई फोटो में वो नंगे पंगे कपड़े पहन के फोटो इंस्टाग्राम पे डाल देती हैं रील्स. यू सी द चेंज ऑफ हर लाइफस्टाइल, ओके। यू नो वेयर इज कमिंग फ्रॉम. हुँ। ऐसे बहुत सारे बहुत हैं वहाँ सारे पे. हैं, राइट। बॉलीवुड में जैसे हम इतने सब लोगों के हम देख रहे हैं, बात करते हैं, अगर मुझे बता पाए कि सबसे क्लीन पर्सनैलिटी, सबसे जो है जैसे दिखते हैं वैसे ही है, कौन है? ये तो बड़ा इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, इसके तो आंसर ही नहीं है यहाँ पे. हुँ। आई मीन, अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दूध का दूल्हा कौन है, हुँ। तो मैं
पूरा अमूल की फैक्ट्री भी यहाँ ले आऊं और दिल्ली की मदर डेयरी ले आऊं और अपने बॉम्बे की आर्य मिल्क कॉलोनी ले आऊं, इतना दूध भी डाल के किसी को निला देंगे ना तो कोई भी साफ नहीं होगा। बट इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं इन सारी चीज़ों से अपने आप को जो वन वुमेन देखिए मैं वन वुमन मैन तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे, एंड आई डोंट इवन ब्लेम देम। ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे टेम्पटेशंस हैं। इट्स अ देयर इज नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अच्छा ये एक चीज़ देखते हैं ना, हॉलीवुड का क्रेज़ बहुत रहता है हमारे स्टार्स के बीच में। ऑस्कर अवार्ड्स तो ठीक है कि उनको सभी को चाहिए कि ऑस्कर अवार्ड्स के लिए हमें करना है, पर हॉलीवुड फिल्मों का भी बहुत क्रेज़ होता है। तो क्या ये टैलेंट के बेस पर ही मिलते हैं वहाँ पर इन्हें फिल्में और सारी चीज़ें? देखिए जहाँ तक प्रियंका का भी सवाल है, हम्म, शी इज मेड अस प्राउड, शी हैज अचीव्ड अ लॉट, राइट। बट वहाँ पे भी कहा जाता है दैट सर्टेन वेल विशर्स ऑफ हर्स, जिनकी वजह से उनका करियर यहाँ खराब हुआ था, सर्टेन वेल विशर्स ऑफ हर्स यहाँ पर जिनकी वजह से उनका करियर पहले यहाँ खराब हुआ था, उन्हीं में से कोई लोगों ने उनको वहाँ पे भी हेल्प की। ओके। They hooked her up with some casting agencies. So she's worked hard and she's reached where she has. But आप जहाँ पे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस हैं। जब भी नेपो किड्स या स्टार किड्स की बात होती है ना, सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है करण जौहर पर। मुझे बताइए कि क्या करण जौहर की आप पर्सनैलिटी समझ पाते, क्यों उनके साथ वो स्टार किड्स को लेकर, क्या सचमुच वो उनका एक अलग इंटरेस्ट है कि वो अपने जो स्टार किड्स और वो फैमिली को सपोर्ट करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, या समथिंग कुछ और है, लोग देख नहीं पा रहे उसे? देखिए बेचारा करण है ना, ही इज द फेवरेट पंचिंग बैग ऑफ एवरीबॉडी। ओके। अब करण इज एन इंडस्ट्री बॉय, ही हैज ग्रोन अप इन बॉलीवुड, हिज डैड वाज अ फिल्म मेकर, राइट। ओके, तो ही हैज ग्रोन अप इन दिस एनवायरनमेंट। वो अब क्या बेचारे बाहर जाएं? हाँ, तो ही इज फ्रॉम हियर, उनके दोस्त यहाँ पे, उनके रिश्तेदार यहाँ पे, उनका सब कुछ यहाँ पे है, तो दैट्स हिज कंफर्ट जोन। राइट। ओके, मैं क्या बोलने वाली थी, एक मिनट। हाँ, अब आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, यहाँ पे हर्ष, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आप हर हफ्ते पॉडकास्ट करते हो, करेक्ट। अब मैं आपको बोलूं, आप नॉन पर्सनालिटी को मत लेके आओ। आप रोज यहाँ पे जब पॉडकास्ट करते हो, आप जाओ वहाँ पे जहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस के बाहर लाइन लगती है ना, आप रोज नया न्यू कमर यहाँ पे लेके आओ और आप उसकी स्ट्रगल की बात करो, 1 घंटा उसके साथ पॉडकास्ट करो जहाँ पे वो सब अपनी स्ट्रगल की बात कर रहा है, आप लाओगे? आई गेस ऑडियंस ही सुनना नहीं पसंद करेगी। हाँ, तो यहाँ पे आप लाओगे? नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे? क्योंकि ये जो हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे ऑडियंस हैं, वो क्या उनकी बात रोज सुनेंगे? तो यहाँ पे सिर्फ करण जौहर का कसूर है कि ऑडियंस का भी कसूर है। अगर करण जौहर सिर्फ न्यूकमर्स को लाएं जिनके पास टैलेंट नहीं है, हर 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 न्यूकमर के पास तो टैलेंट नहीं है। करेक्ट। ये जो नेपो किड्स हैं, ये कम से कम जाके न्यूयॉर्क में, लंदन में कुछ तो सीख के आते हैं, फिर यहाँ पे भी उनके पास पैसे होते हैं, यहाँ पे वो डांसिंग क्लासेस लेते हैं, एक्टिंग क्लासेस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो जब बड़े हो होते हैं वो अपने माँ बाप के सेट्स पे भी जाके उनकी भी तो एक्टिंग देखते हैं, तो यही देख देख के वो बड़े होते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो आज अगर आप यहाँ पे रोज एक स्ट्रगलर को लाके यहाँ बिठा दोगे, यही आपके व्यूअर्स आपको 10 लाख व्यूज देंगे? नहीं देंगे क्या? तो मैं आपके ऑडियंस से, हमारे ऑडियंस से पूछ रही हूँ कि अगर करण जौहर रोज एक नए लुक्खे को ला देगा यहाँ पे, देखो 1 लाख में से एक बंदा टैलेंटेड निकलेगा, 2 लाख लोगों में से एक सुशांत सिंह निकलेगा। आप क्या हर दिन एक नए चेहरे को, जिसको टैलेंट नहीं है, नाचना नहीं आता है, डायलॉग डिलीवरी नहीं आती है, आप करण जौहर की फिल्म को हिट करोगे? तो बेचारे करण जौहर को तो रोज गालियां पड़ती हैं। क्यों यार? क्यों? ही इज अ काइंड मैन, उसको रोज इतनी गालियां पड़ती हैं। यूट्यूब पे रोज कम से कम 10 नई स्टोरीज बनती हैं कि करण जौहर कैसे सबके करियर बर्बाद करता है और कितने लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। वो बेचारा करता क्या, मुझे बताओ। कंगना रनौत ने तो काफी कुछ कहा था। तो वो तो कंगना ने कहा है ना, हम्म। तो उसने तो एक नेपोटिज्म का ऐसी गंदी गाली बना दी कंगना ने। कंगना कौन सी कम है? कंगना ने कितने लोगों को चांस दिया है, वो तो भी प्रोड्यूस करती है ना, मूवीज डायरेक्ट करती है। कंगना ने कितने न्यूकमर्स को खड़ा किया, मुझे बताओ। राइट।
कंगना ने खाली खुद को प्रमोट किया है ना, वो करण जौहर को नेपोटिज्म कहती है। कंगना ने कितने न्यू कमर्स को स्टार्स बनाया, बताओ मुझे। राइट। हम भी आज यहाँ बैठे हैं क्योंकि आई एम गिविंग यू स्टोरीज अबाउट बॉलीवुड स्टार्स। राइट। मैं यहाँ पे बैठ के ना बोलूंगी, अरे पता है एक बंदा है, उसका नाम है ना नमित है, वो मेरे घर के पीछे रहता है, उसने ना 5 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज हर्ष आप उसकी स्टोरी यहाँ डालो और मैं उसका नंबर डाल रही हूँ, वो आप चलाओ और आपके व्यूअर्स को बोलो उसको 500 रुपये सब डाले ताकि उसके पास ना महीने के खाने के खर्चे आ जाएं। आपके व्यूअर्स अभी चैनल चेंज करके ना दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। राइट। तो सिर्फ करण को क्यों गालियां देते हो भाई? अच्छा मैम ये बताइए कि आपको कौन सा स्टार किड्स लगता है प्रॉमिसिंग है, सच में टैलेंट भरा हुआ है आपको? देखिए, आई यूज्ड टू थिंक जानवी में है, बट आई थिंक वो जानवी की प्रायोरिटीज अलग हैं, वो शादी करके निकल जाएगी। राइट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जैसा आपके बारे में सुना था सचमुच आप उतने ही बेखौफ और बेबाक लगे। पेज 3 मूवी में जो आपकी जो इमेज बनाई गई थी, जिस तरह से आपने चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई थी, सचमुच आप उसे ही बेबाकी से चीज़ें बताती हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी स्टोरीज़ बताती हैं इंडस्ट्री उसको बहुत अच्छे से लेती है। हाँ, फेक स्टोरीज़ आएंगी तो डेफिनेटली ये नाराज़ होंगे, लेकिन अगर अच्छी स्टोरीज़ सही स्टोरीज़ बताएं तो वो कभी नाराज़ नहीं होते और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। बॉलीवुड इज अ वेरी पॉजिटिव प्लेस। और पेज 3 में तो कोंकणा सेन ने बॉलीवुड क्विट करके क्राइम की लाइन को फॉलो कर लिया था। आई लव बॉलीवुड, बॉलीवुड लव्स मी, और मैं बॉलीवुड जब तक सिमी है तब तक वो बॉलीवुड में ही रहेगी और मैं बॉलीवुड को प्यार करती रहूंगी, देती रहूंगी और मुझे भी बॉलीवुड हमेशा प्यार करता रहेगा। और मैं आपके व्यूअर्स से, मेरे व्यूअर्स से यही कहूंगी, कीप लविंग बॉलीवुड। बॉलीवुड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड नेवर जज देम रॉन्गली। थैंक यू सो मच मैम। Thank you for having me.